Today we are going to start exercise 1.2 as we have some new student attending the first lecture today. So in exercise 1.1 we have left two questions, question number 13 and 14. Okay, so for that you can leave 4 to 5 pages. In next lecture we can do that 13 and 14. Today we are starting with exercise 1.2 in which we have to learn about length of arc, area of sector and perimeter of sector. Now basic thing, what is length of arc? So as we have learned in 10th standard, this is a circle, this is center O, O to A is a radius. Now if I rotate A to some point B in the circle on the circumference, this part, the length traveled by A to point B is called as the minor arc, and also it is called as the length of the arc. Also it is called as the length of the arc. This is minor arc and the remaining part is called as a major arc. Samjha? So length of arc is nothing but the minor arc which is given by the formula, which is denoted by letter capital S and has the formula R into theta, where theta should be in radian. If it is given in degree, we have to convert it into radian. How we will convert it into radian? By multiplying that degree by pi upon 180. This is already done in exercise 1.1. The area of sector. Sector is, what is the sector? If I order pizza, the one part of the pizza, one portion of the pizza is called as a sector. The whole portion is called as a sector. Then area of sector, again, the formula is half into r square into theta. Again, theta is in radian. And perimeter of the sector, as we know, perimeter is sum of all sides. Here we have three sides here, R and S. 2R plus S. You can ask me any question. If you have not understood the concept, please ask. You can unmute your mic and you can ask the questions, no problem. And if you want to learn the exercise 1.1, let me know. This is my number. You can message me personally, WhatsApp me personally. I can add you to our group so that you can get regular updates and recorded lectures. And if you want to learn again, I can take lectures separately, no problem. Chalo, is this done? Everyone? गर्ल्स बॉयज आंसर ये हो गया, आगे बढ़ते हैं. Yes. हो गया, सबका हो गया. अभिची, धानुश्री, गार्गी, हर्षली, मानसी, समिता, शोभा, सृष्टि and उमेश. Please let me know. If it is done, then we can move ahead with exercise 1.1, 1.2, question number 1. These are all important formulas which are going to be used in this exercise. अभी ध्यान से सुनना और समझना. जहां नहीं समझा वहां रोक देना. Everyone. Those who are attending first time, please let me know if you have not understood. Please tell me. Exercise 1.1, 1.2, question number 1. Find the length of arc. क्या find करने बोलता है देखो. To find length of arc, which is S, of a circle which subtends an angle of, angle देके रखा है 108 degree at the center. If the radius of the circle is 15 centimeter, radius given है, angle given है. Formula क्या आएगा? S is equal to R into theta in radian. Okay. See how to represent this. This is your representation. R कितना है? 15. थीटा डिग्री में है. इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में. So you will do it by like this 180. समझा? ये हो गया रेडियन में. This is in radian. ऐसे ही करना है आपको हर सब में. So this will be 15 into 108 into pi upon 180. I'll cut this 15 12s are 180 or 12 9s are 108. So answer will be 9 pi centimeter. Simple. बोलो क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है और क्या नहीं समझा आपको.
वो बताओ। सेंटर का एंगल दिया था 108 डिग्री, रेडियस दिया था 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने बोला था। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आर इंटू थीटा विच इज इन रेडियन। रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया पाई बाय 180 से, बराबर। फिर 15 इंटू 12 180 होता है, 12 9 सा 108, आंसर इज 9 पाई। बोलो क्या नहीं समझा? अनुश्री, सृष्टि, समिधा, बोलो। हो गया? समझा? वेरी गुड, शाबाश। आंसर्स दो, मुझे रिप्लाई करो बच्चा लोग। इवन दो यू आर न्यू, प्लीज प्लीज आंसर करो, प्लीज आंसर। मेक दी सेशन इंटरैक्टिव। आप बोलते रहो हाँ सर, नहीं सर, जो भी है। समझा तो बोलो ओके सर, हो गया तो बोलो हो गया, नेक्स्ट सम। So we'll move on to next sub. Done? Yes. Okay. Everyone? Shall I go for the second sum? Okay. Chalo. Very good. Question number 2. The radius of the circle is 9 centimeter. Radius of the circle 9. Find the length of an arc of this circle. Length of an arc of this circle which cuts off a chord. ध्यान से सुनना, इजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना। Cuts off a chord of length equal to length of radius. अब इसका मतलब क्या होगा? देखो, S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा विच इज इन रेडियस। अभी इसमें देखो क्या नहीं दिया है, रेडियस दिया है, क्या नहीं दिया है? हेलो हेलो हेलो, क्या मिसिंग है? फॉर्मूला के लिए क्या मिसिंग है? रेडियस तो पता कर दी, रेडियस दे के रखे उसने, फॉर्मूला चाहिए आर इंटू थीटा, तो क्या नहीं दिया है? थीटा। थीटा। थीटा नहीं दिया तो थीटा के लिए उसने ये कंडीशन दिया है। देखो ये कंडीशन से अपने को थीटा निकालना पड़ेगा। अभी उसने बोला है जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड है वो किसके इक्वल में है? रेडियस के इक्वल में। अभी ध्यान से समझना, उसका जो कंडीशन है उसको अपन ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से समझना और सुनना, बराबर। ये हो गया तेरा रेडियस, ये भी हो गया तेरा रेडियस, और अगर यहाँ से मैं ज्वाइन करूंगा ये तेरा हो गया कॉर्ड, बराबर। ओ ए बी, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये तेरा हो गया कॉर्ड। अभी क्या कहना चाहता है? रेडियस इक्वल टू कॉर्ड, मतलब ये और ये तीनों इक्वल है। लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड, दैट मींस दिस इज आल्सो इक्वल्स टू आर। मतलब ये तीनों के तीनों लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल कितना होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? शाबाश, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा? ईच एंगल इज हाउ मच फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल? शाबाश, बहुत बढ़िया, 60 डिग्री। सबके सब 60 डिग्री, अपने को इसी का काम है। इस तरीके से उसने एंगल दिया है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। Now the thing is easy for us. S is equal to R into theta radian. R is given as 9. Theta is given as 60 into pi by 180 radian. 9 into 60 into pi by 180. 60 threes are and 3 threes are 3 by centimeter. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला पार्ट, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला पार्ट, ध्यान से सुनना अगर किसी को नहीं समझा होगा तो। ये हो गया सर्कल,
ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, नाम नाम दे देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। और ये कॉर्ड हो गया। उसने बोला है लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस। मतलब ये दोनों रेडियस तो इक्वल ही होता है, कॉर्ड का लेंथ भी रेडियस से इक्वल है। मतलब ये जो ट्राइंगल हो गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ये एंगल मिल गया 60 डिग्री, 60 डिग्री मिल गया, रेडियस मालूम है, एंगल मालूम है, फॉर्मूला में डाल दिया। Please ask the questions that will make you more clear. Do not hesitate to ask question. Please ask. If you are not getting it, please ask. I'll make you understand 5 times. जब तक आपको नहीं समझेगा मैं समझा सकता हूँ। बस आपको सिर्फ ये करना है, पूछना है सर ये बताओ नहीं समझा, दैट्स इट। और रिप्लाई करना है, समझा नहीं समझा बोलो, बस आप रिप्लाई करते जाओ, बस वो मेरे लिए। ये सम को मार्क करो, इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। डन। Yes, sir. डायग्राम बना लो आपके रेफरेंस के लिए। हो गया तो बोलना। Yes, sir. Done. डन, ओके। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा लोग। ओके, Yes, sir. यस शाबाश, बस आंसर करो, बस हो गया। हाँ बेटा। सर हमें मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कैसे है, मतलब हाँ दिखाना हाँ पड़ेगा हाँ, हमें दिखाना सम में। पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर आप सीधा यहाँ पे अगर डायग्राम बना के इतना भी दिखा दिया ना तो भी चलेगा। बराबर, अभी मैंने क्यों आपको ड्रॉ करके दिखाया, क्योंकि आफ्टर फ्यू डेज आपको ये पता नहीं चलेगा कि आया कहाँ से। अगर मैं सीधा यहाँ पे थीटा 60 डिग्री लिख देता और ये कुछ भी नहीं ड्रॉ करता और मैं सीधा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एक महीने बाद या 6 दिन के बाद 8 दिन के बाद क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा। लेकिन अगर बाजू में अपने पास डायग्राम रहेगा ना तो ये तो रॉन्ग कोई देने वाला ही नहीं है, डायग्राम का जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिवाइज, अपने को पता चला कि 60 कैसा है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आपने एग्जाम में डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, रिक्वायर्ड नहीं है, बट ड्रॉ किया तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। हाँ भाई तेरे को कंसेप्ट भी समझ में आया, इसके लिए तूने डायग्राम ड्रॉ किया तो अच्छी बात है। डन, यस चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा पूछते जाओ आप लोग यार, मजा आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। क्या फाइंड करने बोलते हैं, एंगल इन डिग्री एंड रेडियन में एंगल फाइंड करना है। Subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter, length given है। If the radius of the circle is 25 centimeter, simple, length दिया है, radius दिया है, theta पूछा है, formula we know r into theta in radian, s is equal to r into theta. So I'll solve here, s is equal to, s कितना है 15, r कितना है 25, theta in radian, so 15 upon 25 is theta in radian, 5 3s are 5 5s are, theta in radian is 3 upon 5। आ गया रेडियन में एक आंसर। अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, थीटा इन डिग्री। क्या आएगा फॉर्मूला बताओ, डिग्री में क्या कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताओ फटाफट, अगर आपको याद है तो। क्या मल्टीप्लाई करूं, 180 upon 180 क्या upon बात है, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, 180 अपॉन पाई डिग्री, शाबाश। अब ये कट होगा, 36 3 जा 108 अपॉन पाई डिग्री। दिस इज माय फर्स्ट आंसर, दिस इज माय सेकंड आंसर। वेरी गुड। बोलिए, क्या डाउट, क्या क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, बिंदास बेझिझक पूछिएगा। आपका जो आगे का मिस हुआ है वो आपको सीखना है। आप मेरा ये नंबर पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको लेक्चर्स भेज सकता हूँ और आपको फिर से पढ़ा भी सकता हूँ। एवरीवन, ज्यादा नंबर मतलब समझा नहीं अनुश्री? क्वेश्चन नहीं समझा, मुझे क्या बोलना चाहती है? इसको पाई में रखने का, इसको कन्वर्ट नहीं करने का, ठीक है? पाई का वैल्यू 3.14 हो सकता है अगर चाहिए, लेकिन अपने को एज इट इज ही रखने का है। मतलब ऐसा कोई इसका कंसेप्ट नहीं है कि ज्यादा नंबर आएगा कम नंबर आएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर रेडियन से डिग्री में लाना है तो 180 से पाई से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आंसर कितना भी आ सकता है, ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई उसका कंक्लूजन नहीं है कि कम आएगा या ज्यादा आएगा। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर्स टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। गेटिंग इट? सो ये मत याद रखो कि ज्यादा आएगा या कम आएगा, जो भी आएगा। डन? Yes. आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, लेंथ बोला है 14 सेंटीमीटर, पेंडुलम का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, ऑसिलेट हो रहा है 18 डिग्री से, 18 डिग्री से ऑसिलेट हो रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ इट्स पाथ। पहले अपन इसको समझते क्वेश्चन को कि ये कहना क्या चाहता है। एक पेंडुलम है, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज अ पेंडुलम, ये मैंने आपके डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए बनाया। दिस इज अ पेंडुलम, ये ऑसिलेट होएगा, सो इट ऑसिलेट लाइक दिस,
सो लेट अस से इसका ये पोजीशन ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, ये इधर आएगा, दिस इज ऑसिलेशन। क्लियर? अभी ये इसका फाइनल पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन बोलो, ये इसका मेन पोजीशन। अभी ये जो एंगल बनाया है, ये जो एंगल बनाया है वो है 18 डिग्री। दिस इज योर 18 डिग्री एंगल। ओके, एंड ये जो लेंथ है इसका, पेंडुलम का जो लेंथ है वो है तेरा 14 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये इंटरप्रेट किया और ये डायग्राम बनाया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मुझे रेडियस मिला 14 सेंटीमीटर and angle mila 18 degree. Now this is my length of path, that is S, which is equal to R into theta. R is 14, theta is 18 into pi by 180 radian. 14 into 18 into pi by 180. Here ये कट हुआ 10, 1.4 pi centimeter. Clear? मार्क करो इसको भी इम्पोर्टेंट। और क्या क्वेश्चन है प्लीज पूछिएगा। आपको बोला है एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर और ऑसिलेट हो रहा है, और ऑसिलेट होने के बाद वो 18 डिग्री का एंगल सबटेन करता है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक ऑसिलेट मतलब एक पेंडुलम बनाया, ऑसिलेट इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बना लिया, 18 डिग्री का एंगल दे दिया। लेंथ ऑफ पेंडुलम है 14 सेंटीमीटर। वो तो लेंथ ऐसी सेम ही रहेगा ना, ऑसिलेट होएगा तो लेंथ तो चेंज नहीं होगा, लेंथ 14 का 14 ही रहेगा। सो लेंथ, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर एंगल। सो यू नो रेडियस, यू नो एंगल, सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूला। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। Please ask if you have any doubt, any question, any query. This is important. Again, you have to draw the diagram for your understanding. वन पॉइंट वन के 12 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। 2 क्वेश्चन हमने फिलहाल के लिए छोड़े हैं। आफ्टर 1.2 एक्सरसाइज गेट्स ओवर, we'll move on to the last 2 question of exercise 1.1. Those who have missed exercise 1.1 completely, and if they want to learn, please message me. I'll add them in the group. I have recorded lectures. We have a facility. If you have missed any lectures, then you can ask for recorded lectures. You can go through recorded lectures. Also, I can teach you again in the evening time, which I have free slots. I can teach you again. Don't worry about it. And as we finish this chapter, I'll take test, online test of this chapter also. Chapter number 1. हो गया तो बोलिएगा। शाबाश। Any question? Done, very good. बहुत अच्छे।
क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट मार्क किया सबने? क्वेश्चन नंबर 5 टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दो आर्क है ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है. टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtends angles of 60 degree and 75 degree at the center of the two circles. What is the ratio of the radii? R1 is to R2. रेशियो फाइंड करने बोलते हैं. सेम फॉर्मूला है गाइस, इज इक्वल टू R into थीटा इन रेडियन. अब ये कहना क्या चाहता है समझना, दोनों का लेंथ इक्वल है. टू आर ये एंगल दे के रखा है बराबर. दिस इज लेट अस से R1, एंगल इज 60 डिग्री, ये लेंथ है S. ओके और दूसरा सर्कल है, ये एंगल है 75 डिग्री करेक्ट. ये R2 है और ये लेंथ है S. लेंथ दोनों का सेम ही है बोलते हैं. लेंथ विल बी सेम बिकॉज ऑफ रेडियस. रेडियस अगर कम ज्यादा हो गया तो लेंथ सेम हो सकता है. इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है, एंगल में डिफरेंस है तो लेंथ कम ज्यादा होगा ना, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल आ सकता है. समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है तो अभी बताओ बच्चा लोग. कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में घूम रहा है तो बताओ, अभी उसका मैं सॉल्यूशन ला देता हूँ. इफ रेडियस इज शॉर्टेंड और रेडियस इज इंक्रीज, द एंगल में डिफरेंस होने की वजह से लेंथ सेम आ सकती है. बट आप अभी के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लो. सो फॉर दिस सर्कल 1, this is circle 2. Okay, so for circle 1 S is equal to R1 into theta 1 and again S is equal to R2 into theta 2. Equation 1, equation 2 divide कर देते. Divide 1 by 2 S upon S, R1 theta 1, R2 theta 2 should be there in radian ना, इन रेडियन. दोनों एस से में कट हो गया, यहाँ पे बचा 1. R1 by R2, theta 1 60 डिग्री into pi by 180, theta 2 75 डिग्री into pi by 180. pi by 180, pi by 180 सीधा सीधा कट हो गया. यहाँ पे क्या बचेगा, 1 is equal to R1 by R2 into 60 by 75. 15 4 जा 15 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ये 5 into 1 आएगा 5, नीचे आएगा 4, R1 upon R2. So we can get ratio as 5:4. सांगा काय डाउट आहे तुम्हाला? दिस इज हाउ वी सॉल्व रेशियो वाला सम. ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो. ये वाला क्वेश्चन जब मैं टेस्ट लूंगा तब ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा. वैल्यूज चेंज होएगा but the concept will be same. I will change the angle. Instead of 60 75 मैं और कोई वैल्यू दे दूंगा. R1 is to R2 पूछूंगा. क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, आपने बोला है दो सर्कल है, देखो टू सर्कल ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है. टू सर्कल ऑफ सेम लेंथ, ओके, has angle of 60 degree and 75 degree. Find the ratio of their radius. Let the radius of this will be R1, radius of this will be R2. दोनों का लेंथ सेम है, मतलब दोनों का लेंथ S और S ही लिया क्योंकि उसने कंपल बोला है सेम लेंथ. एंगल 60, एंगल 75. According to your formula, S is equal to for first circle R1 into theta 1. For second circle it is R2 into theta 2. S1 और S तो सेम ही है, इसके लिए मैंने S1 S2 नहीं लिखा क्योंकि दोनों लेंथ सेम है.
वन इक्वेशन टू इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, एस अपॉन एस इक्वल्स टू r1 θ1 अपॉन r2 θ2, कट हो गया सेम है तो आंसर 1 बचा। r1 अपॉन r2, θ1 का वैल्यू है 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट हो गया पाई बाई 180, θ2 का वैल्यू है 75 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट हो गया पाई बाई 180, पाई बाई 180 पाई बाई 180 कैंसिल, 60 बाई 75 बचा, 15 से कट गया, 15 4 जा 15 5 जा, ये 5 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये साइड आएंगे तो 5 अपॉन 4 हो जाएंगे, r1 अपॉन r2 इस टू रेशियो में लिख दिया 5:4। समझा अनुश्री? या अभी हाँ सर। बस वेरी गुड। प्लीज आस्क, हाँ कुछ भी क्वेश्चन है आप बिंदास पूछो। शाबाश गार्गी, वेरी गुड यार। हर्षिली, समिता, मानसी, सृष्टि, स्वामिनी, नहीं समझा तो बोलो बच्चा लोग। शाबाश, वेरी गुड। उमेश एंड शोभा जायसवाल, प्लीज आप नहीं समझा होगा तो बोलो। हाँ I can make you explain again, no problem. हो गया तो बोलो। Done? Yes sir, done. चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, the area of circle is 25 pi centimeter square. Find the length of its arc S, subtending an angle of 144 degree at the center. Also find the area of sector. दोनों चीज फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो वी नो, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा है देखो, एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ इंटू स्क्वायर थीटा इन रेडियन। यस, अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको रेडियस नहीं दिया, थीटा दिया, रेडियस नहीं दिया, उसकी जगह पे आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को बताओ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल? एनीवन? साइड स्क्वायर। नहीं एरिया ऑफ नहीं, यस, वेरी गुड, साइड स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 25 पाई लिख दिया। ये दोनों बाजू से पाई और पाई कट हो गया तो बचा मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर मिल गया 5 सेंटीमीटर, बराबर। सबसे पहली चीज मैं निकालूंगा आर इंटू थीटा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज 5, 144 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, पाई इंटू 144 इंटू पाई बाई 180 में 12 से कट करता हूँ, 12 12 जा 12 15 जा 5 3 जा 3 4 जा, आप आपके हिसाब से कट कर सकते हो, 4 पाई सेंटीमीटर। दूसरा मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर विच इज हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन, हाफ
pi square into 144 into pi by 180 half into 25 into ये 12 12 जा 12 15 जा 12 pi upon 15 ये 2 और ये कट हुआ 6 ये 5 5 जा 5 3 जा ये 3 2 जा so finally answer will be 10 pi centimeter square. आप कैंसलेशन आपके हिसाब से कर सकते हो. सर हाँ जब हमने आर स्क्वायर इंटू 25 को डायरेक्टली आर इंटू 5 सेंटीमीटर लिखा तो हमें रीजन नहीं लिखना है उधर कुछ? नहीं रेडियस तो माइनस आ ही नहीं सकता ना बेटा. इट शुड बी प्लस माइनस 5 करेक्ट. लेकिन रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव. दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल ना, एरिया ऑफ सर्कल. सो दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल. सो रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. जरूरत नहीं है. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछेगा. कैलकुलेशन खुद से करके देखो. किधर नहीं आ रहा है तो भी पूछो. Any doubt, any question? हो गया.